آغا صاحب اب میں دوبارہ وہ ہماری بات تھوڑی سی دوسری طرف نکل گئی. آپ کا یہ یعنی مجھ سے کچھ دوستوں نے بھی یہ کہا تھا کہ کچھ آغا صاحب کے فہم دین کے اصول جو آپ کے ہیں اس کو میں ذرا سمجھ کے دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے نا. تو آپ یہ فرما رہے کہ دین اسلام کا جو ایمان والے حصہ اور احکام والا حصہ دونوں کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے, یہ طے ہے. ٹھیک. اب یہ جو بخاری مسلم اصول کافی بہار اور یہ سارا جو ایک ہمارے پاس ذخیرہ ہے جس میں پیغمبر کی طرف اصحاب کی طرف ائمہ معصومین کی طرف جو منسوب بہت ہے, تو اس کو جب ہم آپ یہ کہتے ہیں یہ جعلی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا یہ تو ایک ہو گیا نا کہ جعلی ہے. ماشاء اللہ. جی سہراب الدین کی ایک دفعہ ساردو سے گئے جعفر, پڑھا لکھا افسر تھے, ادھر آیا یہاں آپ بیٹے. میں نے کہا جعفر صاحب آپ سمجھ لے پورے پاکستان کے علماء میں سے میرا علم سب سے کم ہے, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ان سے علم میں آگے ہوں, صحیح, میں نیچے ہوں, چھوٹا ہوں, لیکن یہ لوگ دین چور ہے اس لیے بچے سے ڈرتے. سمجھ میں آیا؟ وہی بات آپ سے کرتا ہوں, میرا علمی دعویٰ نہیں ہے. یہ بات میں پہلے نہیں کر رہا ہوں. میرے پاس احادیث جعلیوں کی شیعوں کی کتاب بھی ہے, سنیوں کی, جنہوں نے جعلی احادیث کو نکالا ہے. مثال کے طور پر شیخ کلینی نے 16,000 حدیث جمع کی ہے. جی, علامہ مجلسی نے اس میں تحقیق کر کے 9,000 حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. 9,000 حدیث علامہ مجلسی نے میرات العقول میں. ہاں سمجھ میں. جی وہ خود جعلی ہے لیکن اپنے فرقے کو چھپانے کے لیے اچھا جذبات ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا ہے. اچھا, بخاری ابھی شیخ البانی نام کے اردن میں ہوتا ہے, اس نے کوئی 20 جلد میرے پاس ابھی ہے, ضعفاء والحدیث. جی جی, سمجھ میں آیا؟ جی جی. مصنوعات ادھر کے ہے, مصنوعات حدیث, بہت ہے. موضوعات حدیث, کتابوں کی بھرمار ہے. جی جی, ایسا ہی نہیں, وہ تو چلے دیکھیں, وہ تو بالکلیہ رد نہیں کرتے نا. یہ البانی ہو, علامہ مجلسی ہو, علامہ ایک کوئی بات نہیں. جی جی, حدیث سننے کے حدیث کی 2 شرط ہیں. اچھا, حدیث کی 2 شرط ہیں. ایک شرط ہے اس کا متن صحیح ہو. جی, متن کسی قانون سے متصادم نہ ہو. قانون کیا مطلب؟ ایک قانون اسلامی مسلمہ. اچھا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, سمجھ میں آیا؟ جی جی, ایک قانون کونیات ہے. ٹھیک ٹھیک. قانون کونیات میں مثلا پہلے زمانے میں 9 ستارے کہتے تھے, نہیں 3 4 5 ستارے نظام شمسی میں, ابھی 9 ستارے کہا ہے. اچھا, سمجھ میں آیا؟ سورج کی گرد 9 ستارے گھومتی ہیں, چاندوں کے علاوہ. آپ کہتے ہیں حضرت علی کے لیے سورج پلٹایا, تو یہ سورج تنہا نہیں پلٹایا ہے, یہ ستارے سمیت پلٹایا ہے. تو عالم تاریخ فلکیات میں یہ ذکر ہے. وہ تو شق قمر کا بھی ذکر نہیں ہے.
नहीं, शक कमर भी ऐसे बात है ना, नहीं है वो। शक कमर भी है, सबको देखना चाहिए ना। जी, तो कुरान में तो है। कुरान में है, शक कमर है, ضربت यानी الساعة कयामत بالشق। के नजदीक होगा। वो हाँ, मुस्तकबिल अभी नहीं है, सही। समझ में है? आगा साहब, बहरहाल जो चीज यहाँ चांद गिर है तो कितने लोग देखता है? नजर आता है जब होता है। हाँ, जी तो शक्ल कमर को कितने लोगों ने देखा है? नहीं नहीं तो फिर अच्छा, एक और मिसाल कहते हजरत अली हर रात 1000 रकात नमाज पढ़ते थे। 1000 रकात, फिर रकात अगर 1 मिनट है तो कितने घंटे बनते हैं? हाँ, 16 घंटे। नहीं वो ठीक है। देखे आगा साहब, अब ये हो गया ना, चल आप बात पूरी करें फिर मैं एक सवाल करूं। हाँ जी, आपकी बात पूरी हो गई। हाँ, नहीं हाँ जी, मैं यानी कानून उसूल मतिन हाँ। सही होना चाहिए, Very good। मतिन पे कोई एतराज ना हो। जी, दूसरा सनद। हाँ, नंबर 2 सनद। हदीस किस किताब से है? ता रसूलुल्लाह मिलने तक दरमियान में सब कुछ सही हो, बिल्कुल सब सही हो। जी, हदीस बनाने वालों ने इल्म रिजाल निकाली, रावियों का नाम, ये रावी अच्छा है, ये रावी गलत है, तो उन्होंने फिर उनको डालने के लिए पहले हदीस को सही नाकिब अच्छा रखा, आखिरी हदीस को वो भी अच्छा सही रखा, बीच में गलतियों को लाया। समझ में है? बीच में गलतियों को लाया। तो आगाए खूबी ने, इन्होंने 20 जिल्द के जो है इल्म रिजाल पर लिखा, जी उसके जो एक शागिर्द ने इस पर लिखा है कि शेख तोसी ने और शेख सदूक ने अपनी जिस रिवायत को नकल किया वो तो सही है, लेकिन आगे सारे खराब है। अच्छा, हाँ, आप अभी भरत हो ना, अभी आप भरत करे कोई हदीस लाओ कि जिसकी सनद मतन और सनद दोनों सही हो और पैगंबर से मिलता हो। लफ्ज हदीस बजाते खुद जो है यानी इसमें पैगंबर के लिए मंसूब है पैगंबर। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मुहद्दिसीन खुद भी उसको जन्नी कहते हैं ना, यानी यकीनी नहीं है वो। उन्होंने थोड़ा पढ़ दिया जी, बहुत अच्छा। लेकिन आसम मसला ये है ना, कुरान फहमी, कुरान समझने के लिए क्या आप आसमान से सर मारे, जमीन पे लात मारे, समझ में आ, सर दीवार से टकराए, आपको कुरान से भरा कि नहीं? जगह नहीं है। जी जी, वो तो सही है। सबसे ज्यादा धोखा लफ्ज मौजिजा है। अच्छा, मौजिजा। मौजिजा जो है, मैंने बताया मौजिजा के लिए कुरान में आयत आया है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अल्लामा मजलिसी ने पैगंबर की मौजिजा 4444 नकल की। जवाद मुगनिया ने कहा लातेदाद मौजिजा है, समझे? पैगंबर की मुशरिकीन ने अल्लाह पैगंबर से कहे कुरान के कोई मौजिज़ा, ये मौजिज़ा दिखाओ। सूरह फुस्सिलत में आया है, नहीं अनकबूत 41-51 में, अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, क्या ये कुरान काफी नहीं है मौजिज़े के लिए? जी, पैगंबर का कोई मौजिज़ा नहीं, एक तो यही कुरान है नबूवत के हवाले से, और यही इसरा जो है पैगंबर की तसल्ली के लिए है, पैगंबर के और कोई मौजिज़ा नहीं। अच्छा, हाँ,
सिर्फ उम्मत को दुखाने के लिए लाया। लफ्ज आयत का माना मौजिजा करना यानी मजबूर करना, कि वो मजबूर करे मुकाबला न कर सके, लफ्ज ये गलत है। सही। आप मौजिजे के ही इनकारी है या आप बोलते जो कुरान में मौजिजा है वो ठीक है? नहीं, मैं कहता हूँ कुरान में आया है, हम पैगंबर को मौजिज़ा ज्यादा नहीं दी। नहीं, जैसे हजरत मूसा की लाठी है, नहीं, हमारे पैगंबर की नहीं, वो- मूसा के लिए वो दो मौजिज़ा, अच्छा असा व यद बेजा है। जी, अनि वलक़द आतैना मूसा तिस्सा आयात, फी तिस्ई आयात, हाँ तिस्सा आयात दिया है, जी जी समझ में आया? जी जी ये ऐसा के लिए दो तीन है। जी जितना यहाँ के उलमा कहते हैं अनबिया हर कुछ कर सकता है, पैगंबर सब कुछ कर सकता है, कुछ कर नहीं सकता। मूसा को आसा मारना पता नहीं था। मूसा ऐसा नहीं कि मौजिजा मूसा जहां आसा जहां मारे वो मजदा बन जाते। जब मूसा को खबर मिली कि फिरौन आप सबको कत्ल कर रहा है, तो कौम को लेके मूसा जो है चले गया बाहर शहर से, दरिया के किनारे पर पहुंचा। तो कौम ने मूसा को तंग किया, वहीं जो मरवाया आपने, अब फिरौन आ रहा है हम सबको मार देंगे। मूसा को पता नहीं था कि असा मारी दरिया को। कहा मेरे रब ने वादा दिया है डरो मत। जब नजदीक पहुंचा मूसा को, फिरौन नजदीक पहुंचा तो हुक्म हुआ इस रब्बाकल बहर, दरिया पे मारा तो मूसा निकल गया। बाहर निकल गया तो मूसा डर के फिर आसा मारने की इशारा कुछ, अल्लाह ने कहा मत मारो, खुद ब खुद जा। मूसा क्या यानी मोजिजात अनबिया के हाथ में नहीं दी है, मोजिजात मौके पर अल्लाह उनके हाथ से चलाता। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। लेकिन आगा साहब अभी भी हमारे जहन में एक उलझन बाकी है, अभी भी वो उलझन ये है कि जब हम पैगंबर की सीरत की बात करते, सीरत पैगंबर आपने पिछले गुफ्तगू में भी बात की थी, तो वो सीरत किधर से हम लेंगे? तारीख से लेंगे, हदीस की किताबों से लेंगे ना। उसवा जो पैगंबर का है, पैगंबर की सीरत की किताबें बराबर लिखी है जिस पर सबका इत्तेफाक हो। ये उसमें भी झूठ बहुत है। हाँ झूठ है, मतलब जरूरत करेंगे तो क्या होगा। सही। तो हदीस को या हदीस को मतीन और सनद से देखना पड़ेगा। वो देख लिया, समझ में आया? ठीक है। यानी सीरत पैगंबर जो है कुरान से लेना होगा, अगर है तो मसलन सीरत पैगंबर पर लिखी कि जिस पर सबको इत्तेफाक है। अच्छा सही सही।